Hello guys, welcome back on my YouTube channel Hub of Knowledge Mac. Friends, today we discuss about VDA 6.3 Potential Analysis P1 versus Process Audit P2 to P7 and इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे डाउन ग्रेडिंग रूल्स एंड ट्रैफिक सिग्नल्स को समझेंगे एंड एक्शन प्लान का क्राइटेरिया भी समझेंगे. सो फ्रेंड्स, लेट वी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड. दोस्तों, यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें. हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं. हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग training, placement and development of career. First, friends, as all of you knows about the VDA 6.3 standard having total element P1 to P7, but there is some difference between P1 element and P2 to P7 element. So friends, let we start the difference between P1 element and P2 to P7 element. First element P1 is known as potential analysis and rest of the element P2 to P7 using for process audit. So these elements are known as process audit element. Potential analysis P1, it is used to evaluate new supplier by second party. Friends, P1 element is a second party audit. It used to evaluate process effectiveness by first and second party audit. So friends, process audit is a first party audit and second party audit. It can be performed by customer as well as supplier by internal audit. Second party is customer audit. Potential audit, it used to evaluate the existing suppliers for new location, process, technology, etc. So P1 element potential analysis basically using for supplier selection for new product development. Here P2 to P7, it used to assess development of product and serial production as per annual audit plan. It is to be done as per event based audit. Event based means higher PPM, increasing customer complaint and development not done as per plan. So friends, process audit that cover P2 to P7, it also used for new product development assessment and process assessment in case of higher PPM, increasing customer complaint and development not done as per plan, and any other abnormal conditions that impact on product quality means process output. So supplier can assess process capability by using process audit that cover P2 to P7. The third difference is audit to be done for similar product process. Friends, in potential analysis for new supplier selection or assessment, the audit to be done for similar product because new supplier is a unknown supplier. So similar family part process audit to be done at new supplier end as per potential analysis element. Audit to be done for on product and related process, rest of process not audited. During process audit that cover P2 to P7, the process audit to be conduct for on product. कस्टमर अपने ही प्रोसेस प्रोडक्ट का ऑडिट करता है, उसके अलावा बाकी सारे प्रोसेस को वो छोड़ सकता है, मीन्स छोड़ देता है. In potential analysis P1, assessment is marked by using traffic light system red, yellow, green. Process audit assessment is marked as per 0, 4, 6, 8, 10. दोस्तों, according to potential analysis, new supplier is suitable, or you can say new supplier is competent or not. It is based on traffic light signals red, yellow, green. Here process is capable or not
द मार्किंग्स टू बी डन 0, 4, 6, 8, 10। फ्रेंड्स इसको भी समझेंगे कैसे मार्किंग देते हैं और रेड, येलो, ग्रीन में सप्लायर को कैसे रखा जाता है। Here total questions are 36 out of 58. Here total questions 58. दोस्तों P1 एनालिसिस यानी P1 एलिमेंट में तो टोटल क्वेश्चंस 36 जो गवर्न किए गए हैं वो डायरेक्टली P2 टू P7 से लिए गए हैं, क्योंकि P2 टू P7 में टोटल क्वेश्चंस 58 यूज होते हैं, जो कि प्रोसेस ऑडिट एंड डेवलपमेंट के टाइम पे हम सभी क्वेश्चनों को कंसीडर करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस ऑडिट। Next, the main objective of this audit to select a competent supplier। जैसे कि मैंने आपको बताया, potential analysis P1 is using for selection of new supplier। Here, the main objective of this audit to sustenance of business and minimize the bridge between customer and supplier। फ्रेंड्स, अगर हमारा प्रोसेस कैपेबल है किसी सप्लायर का, मीन्स उसका आउटपुट आपका कस्टमर की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है और डिज़ाइन को मीट कर रहा है, तो कस्टमर एंड सप्लायर के बीच का जो ब्रिज है वो कम हो जाएगा, मीन्स पर्सनल रिलेशनशिप इंक्रीज हो जाएंगे और उनको न्यू बिजनेस भी मिलेगा और एग्जिस्टिंग बिजनेस को सस्टेनेंस भी मिलेगी। इट इज़ आल्सो कवर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। P1 potential analysis is also cover all development activities। P2 to P3, P4 covered development activities. It is known as development audit। This audit to be carried out after PPAP before SOP। दोस्तों, प्रोसेस ऑडिट P2 टू P7 जिनमें से P2, P3, P4 डेवलपमेंट ऑडिट के टाइम पे यूज होते हैं और P5, P6, P7 ऑडिट टू बी डन डूरिंग SOP और डूरिंग सीरियल प्रोडक्शन आफ्टर SOP। ये जो अगर हमको मास प्रोडक्शन के डूरिंग या सीरियल प्रोडक्शन के डूरिंग हमें ये चेक करना है प्रोसेस का आउटपुट हमारे डिजाइन स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, देन आप प्रोसेस का ऑडिट P5, P6, P7 के बेस पे करोगे। इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप क्रॉस वेरीफाई करोगे डूरिंग प्रोसेस ऑडिट। नेक्स्ट डिफरेंस, डाउन ग्रेडिंग रूल्स नॉट एप्लीकेबल। फ्रेंड्स, पोटेंशियल एनालिसिस P1 में डाउन ग्रेडिंग रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये डाउन ग्रेडिंग रूल्स क्या होते हैं अभी आपको समझ में आएगा। डाउन ग्रेडिंग रूल्स एप्लीकेबल, प्रोसेस ऑडिट में डाउन ग्रेडिंग रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। सप्लायर इज सुटेबल और नॉट, दिस डिसीजन टेकन बाय बायर एज पर GYR स्टेटस आफ्टर ऑडिट। दोस्तों, ऑडिट होने के बाद उसका ओवरऑल स्कोर चेक करने के बाद सप्लायर सुटेबल है या नहीं है ये बायर डिसीजन लेता है अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स, दैट इज GYR, ग्रीन, येलो, रेड। Here process audit, supplier is capable or not, this decision taken by lead auditor और customer as per ABC grading system। यहाँ पे सप्लायर को प्रोसेस को चेक किया जाता है, प्रोसेस हमारा कैपेबल है या नहीं। ये कैपेबिलिटी कहाँ से इंडिकेट होती है, जो ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है BDA 6.3 में ABC। इस ABC को भी अभी समझेंगे, सो प्लीज लेट बी कंटिन्यू। नाउ लेट अंडरस्टैंड ट्रैफिक सिग्नल्स। दोस्तों, अगर सप्लायर किसी भी क्वेश्चंस का रिप्लाई ठीक तरीके से नहीं देता है, कोई भी एविडेंस नहीं दिखाता है, तो वो रेड कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस इज पार्शियली मीट। दोस्तों, सप्लायर का पोटेंशियल एनालिसिस करते समय अगर वो पार्शियली एविडेंसेस को रिप्रेजेंट करता है ऑडिटर के सामने ऑडिट करते समय, तो वो येलो कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। इस येलो और रेड के भी और ग्रीन के भी आगे आपको हम जो क्राइटेरिया बताएंगे कि ये रेड, येलो, ग्रीन में कैसे फॉल करेगा। नेक्स्ट वन, द रिक्वायरमेंट ऑफ द आयर रिप्रेजेंट ऑल एविडेंसेस अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट एज मेंशन्ड इन पोटेंशियल एनालिसिस P1, देन सप्लायर कैन फॉल अंडर ग्रीन कैटेगरी। डूरिंग प्रोसेस ऑडिट किसी भी रिक्वायरमेंट को आप कैसे मार्क करोगे, जैसे मैंने आपको बताया 0, 4, 6, 8, 10 कैसे दोगे। 10 नंबर कहाँ पे देना है, फुल कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट। अगर सप्लायर सभी कंप्लायंस को रिप्रेजेंट करता है, इम्प्लीमेंटेड है फुल्ली एविडेंस के साथ में, देन वो 10 नंबर उसके अगेंस्ट में उसको मिल जाएंगे।
8 नंबर कब देगा किसी रिक्वायरमेंट को? रिक्वायरमेंट मेनली फुलफिल्ड माइनर डेविएशन। दोस्तों यहाँ पे मेनली का मतलब है कुछ एविडेंसेस में कमी है बट उनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, माइनर डेविएशन है जिसका कस्टमर पे और प्रोसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उसके अगेंस्ट में वो कितने नंबर दे देगा? 8 नंबर। 6 कब देगा? रिक्वायरमेंट पार्शियली फुलफिल्ड सिग्निफिकेंट डेविएशन। दोस्तों अगर एविडेंसेस में किसी भी क्वेश्चन के अगेंस्ट में कोई एविडेंस रिप्रेजेंट करता है सप्लायर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑडिट, उसका कोई सिग्निफिकेंट डेविएशन है, मीन्स उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है प्रोसेस के आउटपुट पे एंड कस्टमर पे, देन ही विल मार्क 6। 4 कब देगा? रिक्वायरमेंट्स इनएडिक्वेटली फुलफिल्ड मेजर डेविएशन। इनएडिक्वेटली मीन्स आपने कुछ उसका प्रोसीजर्स WI वगैरह तो रिप्रेजेंट कर दिया है बट कोई भी एविडेंस आपने रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो इसमें इस केस में वो 4 नंबर दे देगा, आपने कोई भी एविडेंस उसको नहीं अगर शो नहीं किया है तो। 0 नंबर कहाँ देगा? रिक्वायरमेंट नॉट फुलफिल्ड। उसकी अगर किसी भी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में आपने कोई प्रोसीजर WI अगर कोई रिकॉर्ड नहीं बना रखा है तो ऑडिटर कैन पुट 0 मार्क। सो फ्रेंड्स, दिस इज द क्राइटेरिया, दिस इज द सप्लायर ऑडिट असेसमेंट मार्किंग क्राइटेरिया। If supplier fall under yellow and green, then action plan to be submit in 14 days and implementation should be within 12 calendar week. It means all actions should be closed before SOP at customer end as well as in-house. दोस्तों as per potential analysis, new supplier fall under yellow and green. It means there is some improvement point for taking corrective action. So the corrective action against these improvement we have to implement the submit action plan to be submit 14 days and implementation of these action plan to be within 12 calendar days. आपको 12 कैलेंडर डेज के अंदर ही अंदर आपको SOP स्टार्ट होने से पहले एक्शन प्लान को सबमिट करना है। ये कौन सा केस है? जब सप्लायर आपका येलो एंड ग्रीन कैटेगरी में फॉल करता है, तो येलो कैटेगरी को बेसिकली ज़्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि ग्रीन का मतलब होता है फुल्ली अप्रूव्ड सप्लायर। यहाँ प्रोसेस ऑडिट में क्या है? इफ सप्लायर फॉल अंडर BC देन एक्शन प्लान टू बी सबमिट इन 14 डेज, इम्प्लीमेंटेशन विद इन 12 डेज। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑडिट सप्लायर का ओवरऑल ग्रेड जो है B एंड C में फॉल करता है, तो उसका जो एक्शन प्लान है आपको 14 दिन के अंदर अंदर सबमिट करना है और इम्प्लीमेंटेशन आपको 12 दिन में करना होगा। दोस्तों अब समझते हैं सप्लायर रेड येलो ग्रीन कैटेगरी में कैसे आता है। तो दोस्तों कोई भी सप्लायर रेड कैटेगरी में कैसे फॉल करता है? अगर जितने भी क्वेश्चंस असेसमेंट किए हैं P1 में हम 36 क्वेश्चंस को असेसमेंट करते हैं, आउट ऑफ 36 आपके येलो कैटेगरी में है और कोई भी रेड नहीं है, तो भी वो सप्लायर रेड कैटेगरी में आ जाएगा। कंडीशनली अप्रूव्ड सप्लायर क्या होता है? अगर वो सप्लायर जितने भी क्वेश्चंस उसके असेस किए हैं, मैक्सिमम 14 क्वेश्चंस आपके येलो कैटेगरी में हैं और कोई भी रेड कैटेगरी में नहीं है, मीन्स किसी भी कोई क्वेश्चन जो है रेड कैटेगरी में फॉल नहीं हुआ है, तो वो कंडीशनली अप्रूव्ड सप्लायर माना जाता है। फुल्ली अप्रूव्ड सप्लायर मीन्स ग्रीन कैटेगरी का मीन्स आपको मैक्सिमम 7 क्वेश्चंस अलाउड इन येलो कैटेगरी एंड देयर इज नो सिंगल 1 क्वेश्चन इन रेड, सो सप्लायर इज फुल्ली अप्रूव्ड सप्लायर। चलिए दोस्तों अब प्रोसेस ऑडिट में ABC ग्रेड क्या होता है इसको समझते हैं। अचीवमेंट लेवल EG का मतलब है ओवरऑल परसेंटेज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासिफिकेशन। A ग्रेड में सप्लायर कब आएगा? अगर ओवरऑल परसेंटेज उसका 90% से ज़्यादा है, देन क्वालिटी कैपेबल सप्लायर, मीन्स उसका प्रोसेस कैपेबल है। B ग्रेड में क्या होता है? अगर ओवरऑल परसेंटेज लेस देन 90 है बट ग्रेटर देन इक्वल टू 80% है, देन कंडीशनली क्वालिटी कैपेबल। C कैटेगरी में कब आएगा कोई भी सप्लायर? अगर ओवरऑल परसेंटेज लेस देन 80% देन नॉट क्वालिटी कैपेबल सप्लायर। सो फ्रेंड, दिस इज द ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ प्रोसेस ऑडिट। दोस्तों इन पोटेंशियल एनालिसिस P1 सप्लायर अगर कंडीशनली अप्रूव्ड है तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पे अभी कुछ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। जो भी NC पॉइंट जो है ऑडिट में रेज हुए हैं ऑडिटर के द्वारा, उनके अगेंस्ट में सप्लायर को एक्शन प्लान सबमिट करना होता है और करेक्टिव एक्शन भी देना होता है विद इन 12 कैलेंडर वीक्स बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्शन।
सो इस केस में क्या होता है, कस्टमर जब तक उसको एक आध ही मॉडल दे सकता है डेवलपमेंट के लिए, उसको ज़्यादा वॉल्यूम बिजनेस का नहीं देगा, न्यू पार्ट भी ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए नहीं देगा। तो ये होता है कंडीशनल अप्रूव्ड सप्लायर। और कस्टमर की कुछ अपनी भी कंडीशंस हो सकती हैं कंडीशनली अप्रूव्ड सप्लायर के लिए, वो सभी जो कंडीशंस हैं वो एप्लीकेबल होती हैं फॉर कंडीशनली अप्रूव्ड सप्लायर के लिए। अगर वो सभी कंडीशंस को फुलफिल कर देता है देन ही विल कंसीडर अंडर फुल्ली अप्रूव्ड सप्लायर, मीन्स ग्रीन कैटेगरी। लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज डाउन ग्रेडिंग रूल्स। पहले समझते हैं दोस्तों डाउन ग्रेडिंग रूल्स होते क्या हैं। ग्रेडिंग मीन्स इफ एनी सप्लायर गेट ओवरऑल स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90%, स्टिल ही कैन कम डाउन डायरेक्टली A to B और A to C grade due to certain reasons as mentioned in VDA 6.3 standard. So let understand reasons of downgrading. रीजन्स फॉर डाउनग्रेडिंग फ्रॉम A to B। सप्लायर अगर एक A से डायरेक्ट B में कैसे आ सकता है, इवन दो द लेवल ऑफ अचीवमेंट इज मीन्स ओवरऑल स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90%। अगर किसी सप्लायर का ओवरऑल स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% है, उसके बावजूद भी वो डायरेक्ट A to B में आ सकता है। वो कैसे आ सकता है, एट लीस्ट वन प्रोसेस एलिमेंट P2 to P7 अचीव्ड स्कोर इज लेस देन 80%। दोस्तों जैसे आपको पता है P2 to P7 यानी हर एक एलिमेंट में अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर उन एलिमेंट का ओवरऑल स्कोर लेस देन 80% है इंडिविजुअली, तो भी वो सप्लायर A to B कैटेगरी में डायरेक्टली फॉल कर सकता है। नेक्स्ट रीजन क्या है, इफ अचीव्ड स्कोर इन वन ऑफ द सब एलिमेंट ऑफ P6 इज लेस देन 80%। दोस्तों VDA 6.3 के स्टैंडर्ड में जो एलिमेंट है P6, इस P6 एलिमेंट के सब एलिमेंट हैं, अगर उसमें ओवरऑल स्कोर लेस देन 80% है तब भी सप्लायर A to B में फॉल कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, एट लीस्ट वन स्टार क्वेश्चन इज रेटेड विथ 4 पॉइंट्स। अगर कोई भी क्वेश्चन जो स्टार मार्क क्वेश्चन है, जिसको एस्टरिस्क क्वेश्चन और क्रिटिकल क्वेश्चन भी बोला जाता है, ऐसा क्वेश्चन अगर वो 4 मार्क्स देता है ऑडिट करते समय, तो भी वो जो सप्लायर है A to B कैटेगरी में डायरेक्टली फॉल कर सकता है। नेक्स्ट एट लीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोसेस ऑडिट इज रेटेड विद 0 पॉइंट। दोस्तों P2 to P7 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन पे 0 मार्क दे देता है ऑडिटर, तो भी वो A to B में फॉल कर जाता है सप्लायर। नाउ लेट अंडरस्टैंड सेकेंड रीजन फॉर डाउनग्रेडिंग A to C even though the level of achievement is means overall score greater than or equal to 80%। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एट लीस्ट वन प्रोसेस एलिमेंट P2 to P7 अचीव्ड स्कोर इज लेस देन 70%। दोस्तों P2 to P7 इंडिविजुअली परसेंटेज अगर लेस देन 70% है किसी भी एलिमेंट की, तो भी सप्लायर A to C कैटेगरी में डायरेक्टली फॉल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अचीव्ड स्कोर इन वन ऑफ द सब एलिमेंट EU1 to EU7 ऑफ P6 इज लेस देन 70%। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया VDA 6.3 स्टैंडर्ड में जो छठा एलिमेंट है, उसके सब एलिमेंट हैं जिनको EU1 to EU7 काउंट किया जाता है। अगर उनमें ओवरऑल जो है स्कोर लेस देन 70% है, तो भी सप्लायर A to C कैटेगरी में आ जाएगा। लास्ट वन पॉइंट, एट लीस्ट वन स्टार क्वेश्चन इज रेटेड विद 0। अगर कोई भी क्रिटिकल क्वेश्चन में 0 मार्क आता है, तो भी सप्लायर A to C में आ जाता है। रोहित फ्रॉम बल्लभगढ़। आई हैव रिसेंटली completed my training from Hub of Knowledge MAC. Friends, if I talk about my training experience, it was really very nice with Mr. S.K. Sharma. He is very nice person. He is the best teacher in the field of industrial training and documentation. Friends, if you want to learn from zero to hero, then this is the best place for take off your career at peak. This is Jayaram from Bangalore. I have successfully completed online course from Mr. Sanjay Sharma. After completing online course, drastic improvement in my career. Thank you above knowledge make team. Myself Sunil from Bangalore. I have completed the course of ISO 9001 2015 through the Hub of Knowledge. I am Subhasis. I am from Madhya Pradesh. I have done online training course. It's very useful. Hi, my name is Ashutosh Rai from Faridabad. I have completed my online training course. It's really a future maker training center. My name is
from Pune. I have completed my online training course. No doubt, this is a future making training center. Hi, my name is Manish from Bahadurgarh. I am doing online documentation training course under the guidance of Mr. S.K. Sharma sir. And I am Uben Singh Yadav from Ballabgarh. I have completed my online trainings